All right. Good evening, students. Guys, can you hear me? I cannot see the responses coming. All right. Good evening, everyone. So, hopefully, everyone enjoyed themselves in the last class. So, today we are going to proceed further. Whatever we have studied, जो भी पढ़ा था उसी को further हम लोग continue करने जा रहे हैं. So I can see the responses coming. So I hope the voice is clear. Can anybody respond? क्या आवाज clear है? All right. Thank you so much. So the voice is clear now. So we'll start off with. So I'm going to write something on the board. Simply go through the sentences. जो भी हमने last time में cover किया था उसी को further हम लोग carry out करेंगे. So I have written two sentences over here. यहाँ पे दो sentences लिखे हैं. एक इनमें से सही है और एक गलत है. तो आपने ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है. So I give you 10 seconds. Please go through the questions and let me know the responses. All right. So I can see some responses coming up. Somebody sending text messages ki last class kab hui thi. We already have finished with one class, but do not worry. I will repeat the concepts. मैं concepts को repeat कर दूंगा so that you can understand the concepts fully. एक बार मैं फिर से repeat कर दूंगा ताकि चीजों को आप समझ पाएं. All right, I can see some of the students answering the questions like Madhur, Satish Kumar, Vijay Verma, and majority of them have answered it correctly. Majority of them have answered it correctly, but whatever जो हम लोगों ने पढ़ा था, so what we are going to do is I'll repeat the concepts. So understand, guys, one thing, if I repeat something, repetition is good. Always remember one thing. The more you repeat, the more advanced, the more competent you become. So repetition is simple, but simple is boring. Anything which is boring will give you success. So is it okay if I repeat the concept that I taught in the first class? क्या मैं concepts को repeat कर सकता हूँ? I'm still waiting for some responses. All right, so let's start with the concept. जो first time हमने पढ़ा था, what we studied. मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी WH फैमिली जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो कंजंक्शन का काम नहीं करता. कोई भी WH फैमिली हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, जो भी WH फैमिली हो. लेकिन कोई WH फैमिली अगर सेंटेंस के बीच में आए तो मेजर रोल प्ले करता है किसका? कंजंक्शन का. मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाया था. मैंने well, I can see the chats coming up, so I would really appreciate if you guys can listen to me. So I want everyone to just simply put down the pen and paper. Please do not write anything, just listen to me for good 3 minutes so that the concepts are clear. I can see the responses still coming up. I would appreciate everyone if please people would stop writing the comments. Can you please listen to me for 3 minutes? After 3 minutes, you can come on live and I'll answer your questions. So for 3 minutes, I would appreciate if people would stop writing anything and just listen to me carefully. The more you listen, the better you understand. तो देखिए, जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है.
किसी भी सेंटेंस का बेसिक फंडामेंटल रुडिमेंट्री एक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं. जैसे इफ आई से all right, if you can see 3 sentences written over here, it says he is studying. It's a very basic sentence structure. He is your subject, is your helping verb, subject पहले आता है, helping verb बाद में, that is a statement. I am repeating, but still I say the more you repeat, the better the concepts become. तो repetition हो रहा है, despite it being boring, please इसको सुनिए because it will help you. Now, look at sentence number 2. It says, is he studying? Is क्या है? Helping verb. He क्या है? Subject. Helping verb पहले, subject बाद में. Helping verb followed by the subject. This is a question and you can see a question mark at the end. ये sentence के 2 basic structure हैं. ये एक statement है और ये क्या है? Question. फिर मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी sentence अगर question होता है, सबसे पहले WH family, where किसका पार्ट है? WH family, is helping verb और ही आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट. तो कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन होता है, सबसे पहले यू हैव द WH फैमिली फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय द सब्जेक्ट. एंड दिस इज द पैटर्न फॉर अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ क्वेश्चन. होपफुली everyone is clear on this part. Hopefully ये चीज सबको क्लियर है कि स्टेटमेंट क्या होता है और क्वेश्चन क्या होता है. I'm just waiting for the responses. Guys, you can respond now. I'm just waiting for your responses. So can please everyone respond on to this? Is this clear? All right, thank you so much. Now, so what we studied, if you look at this one, हम लोगों ने पढ़ा था अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, मिड पोजिशनिंग बीच में अगर कोई WH फैमिली एज अ कंजंक्शन है तो फिनिश भी किस पे होगा? स्टेटमेंट पर. और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ स्टेटमेंट, WH फैमिली एज अ क्वेश्चन, यू फिनिश ऑन टू अ स्टेटमेंट एंड एट द लास्ट यू हैव अ फुल स्टॉप. जो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है वही डिसाइड करेगा कि क्या पंक्चुएशन सप्लाई होगा. दिस वॉज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 says, अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन होता है, whenever you start a sentence with a question, you have WH family. I am reiterating, I am repeating, फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन होता है, अगर वो क्वेश्चन से स्टार्ट हो, यू हैव WH फैमिली एज अ कंजंक्शन, वो फिनिश भी किस पे होना चाहिए? स्टेटमेंट पे. एट द एंड लास्ट में क्वेश्चन आएगा. क्यों? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? क्वेश्चन से. अच्छा, someone is talking about the geography class notes. Okay, fine, I will talk to the admin, don't worry. Geography के notes आप लोगों के मिल जाएंगे. I will have to speak to the admin, do not worry. So hopefully today you guys had your first class in relation to geography. Everything will be provided to you. Rest be assured. आपको सब कुछ provide कर दिया जाएगा. Please परेशान ना होएं. ये English की क्लास है तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दें. So can I have your attention everyone? All right. Now, on the same concept, इस concept पे based, जैसे मैंने देखा कई लोगों ने सही आंसर किया है. If I look at sentence number 1, what is the name of Apple's founder? Question mark.
This is a very basic sentence, and if you find, can anyone find any mistake here? Does this statement have any mistake? Does it have any grammatical mistake? So this one is absolutely fine. Now, coming to number 2, it says, now here lies the concept. यहाँ पे concept based है और ऐसे questions आपके exams में पूछता है. Now, it says, tell me what is the name of Apple's founder. At the end, you have a full stop. So, as discussed, जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, tell me is a statement. Tell me is a statement. क्यों? This is not a helping verb. This is not a WH family. क्योंकि क्वेश्चन वही होता है जो या तो helping verb से स्टार्ट हो या WH family से. And you can see this is not a helping verb. This is not a question. So tell me एक statement है. What? कोई भी WH family अगर बीच में आता है तो मेजर रोल किसका प्ले करेगा? कंजंक्शन. नाउ दिस इज अ कंजंक्शन. आई फॉरगेट इट. इसको भूल जाइए. ये केवल एक कंजंक्शन है. प्रोसीड फर्दर. इफ यू लुक फर्दर, अगर आप आगे देखते हो तो आगे देखिए क्या लिखा है. इज द नेम ऑफ एप्पल्स फाउंडर. Can you please tell me, is this a question or a statement? So guys, I'm waiting for your response. Is the name of Apple's founder, is it a question or a statement? Still, I haven't received any response from the students. Is the name of Apple's founder? क्या ये question है कि statement का format है? थैंक यू भवानी. भवानी हैज आंसर्ड इट करेक्टली. भवानी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. दिस इज द पैटर्न फॉर अ क्वेश्चन. एब्सोल्युटली करेक्ट भवानी. एंड देयर आर सम मोर. Bunty has answered it correctly. Rajendra has answered it correctly. We have Chandan says it's a statement. I'm sorry, Chandan. This is not a statement. This is a question. If you look, is the name of Apple's founder. If you look at the basics, this is your verb and now this is your subject. So this becomes a question. Now, what we studied, कोई भी sentence अगर statement से start होगा, WH family as a conjunction, तो finish भी किस पे करते हैं? Statement पर. So statement बनाने के लिए simply what you do is tell me what the name of Apple's founder is. You simply reverse it. The name of Apple's founder, bring it here, and now is goes at the end. Is कहां चला जाएगा? Last में. Acha, someone is asking that I'm not able to take everyone's name. I'm really sorry. I'll be taking everyone's name because that is not feasible. वो possible नहीं है कि मैं सबका नाम ले सकूं. But then I can see the statements coming up. Acha, someone is asking what is NE? NE is no error. So in detecting errors, whenever you are given statement, जब भी कोई sentence दिया रहता है, तो last में NE लिखा रहेगा. इट मीन्स नो एरर. उसमें कोई भी गलती नहीं है. अगर स्टेटमेंट आपका सही है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो हम यहां पे टिक करते हैं नो एरर पे. दैट इज नो एरर. ऑलराइट. सो आई कैन सी रश्मि आस्किंग फॉर मोर एग्जांपल्स. अर्पिता सेज स्टेटमेंट होना चाहिए. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड समवन सचिन सेज कि समझ नहीं आ रहा है. सो सचिन, इज इट योर फर्स्ट क्लास? अच्छा, नाउ लिसन. जो हमने बेसिक पढ़ा था, हमने ये कहा कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, बीच में WH फैमिली एज अ कंजंक्शन आया तो फिनिश होगा स्टेटमेंट पे और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. क्यों? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? स्टेटमेंट से. फिर मैंने ये भी कहा, बाद में बताया था एक पैटर्न, कि अगर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है WH फैमिली एज अ कंजंक्शन, यू फिनिश ऑन टू अ स्टेटमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसलिए आएगा क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? क्वेश्चंस. नाउ इफ यू लुक हियर, टेल मी. टेल मी एक स्टेटमेंट है, ये एक क्वेश्चन नहीं है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि टेल मी अगर मैं आपको लोग बोलूं लिखने के लिए, सो हाउ डू यू राइट? टेल मी विच वन इज करेक्ट? This one is wrong and this one is correct because this is, even though ये दिखने में आपको लग रहा है, even though दिखने में आपको लग रहा है कि ये एक क्वेश्चन है, this is not a question, this is a statement. See, tell is not a helping verb, tell is not a WH family, so tell me becomes a statement. So tell me is a statement, WH family as a conjunction, और आगे रूल क्या कहता है, हम फिनिश भी किस पे करेंगे? स्टेटमेंट पर. इसलिए स्टेटमेंट से स्टार्ट किया, WH फैमिली एज ए कंजंक्शन, फिनिश भी किस पे करूंगा? स्टेटमेंट पे. और स्टेटमेंट बनाने के लिए मैं चुपचाप इस पूरे पोर्शन को उठाऊंगा, इसको मैं यहां ट्रांसफर करूंगा और इज लास्ट में चला जाएगा. लास्ट में फुल स्टॉप इसलिए आएगा क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे है? स्टेटमेंट से. सो रूल क्या बना? टेल मी. तो आंसर क्या हुआ? टेल मी व्हाट द नेम ऑफ एप्पल्स फाउंडर इज. So we have Ajit Kumar Singh. He says, why are you confusing us? So I can see the responses because there are many students who have again come up. There are many students who have again come up on the show. So whatever we have studied, now we will proceed further. तो जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं. आप देखोगे कि जो रूल हमने अभी पढ़ा उसको हम चैलेंज कर देंगे. उस रूल को देखोगे वो बिल्कुल भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. So you can see some words here. I've written some words. These words will help you in the synonyms and antonyms part. ऐसे words exams में आपसे पूछता है. एक बहुत basic word है. If you look at the word challenge करना, everyone knows it means उल्लंघन करना या किसी को disobey करना. You can write all these words: challenge, disobey, violate, transgress, infringe, defy और ब्रेच. ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ऐसे वर्ड्स खूब सारे पूछता है. चैलेंज इज वन. इफ आई टेल यू टू डू समथिंग, मैं आपको कुछ बोलने के लिए करता हूं, आप उसको नहीं करते हो, इट मीन्स आप मेरे को चैलेंज कर रहे हो, आप उसका उल्लंघन कर रहे हो. डिसोबे बहुत सिंपल वर्ड है, किसी की बात को न मानना. लुक एट द वर्ड वायलेट. वायलेट इज लाइक द सेम मीनिंग. सबकी मीनिंग सेम है. ऑल मीन द सेम. All the words mean the same. So the government has made it mandatory to pay the GST. लेकिन there are some companies जो इसको नहीं पे करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? Violate कर रहे हैं. They are violating the norms. You can see this word transgress. What does transgress mean? Transgress means again the same thing. जब आप कोई चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, you are transgressing a contract. Let's say I and you साइन अ कॉन्ट्रैक्ट. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप तोड़ते हो, उसका उल्लंघन करते हो, सो दैट इज ट्रांसग्रेसिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. मेरे कुछ राइट्स हैं, अगर ये राइट्स का आप हनन कर रहे हो, दैट इज ट्रांसग्रेशन ऑफ माई राइट्स. देयर इज अ बाउंड्री आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, दैट इज ट्रांसग्रेशन ऑफ बाउंड्रीज. दैट इज समहाउ यू आर चैलेंजिंग देम, यू आर डिसोबेइंग देम. ऑल मीन द सेम. Challenge, disobey, violate, transgress. If you can look at this word infringe. Infringe again means the same thing. It again means the same thing. Infringe is like infringement of policies. कोई भी पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट की जाती है with this condition कि everybody should abide by it, कि हर कोई उसको फॉलो करे, but all of a sudden there are many companies, many people, what do? They infringe upon the policies. Policies को disobey करते हैं, challenge करते हैं. That is known as infringe. इसी से noun बनता है infringement of policies. If you look at this word, it's a very nice word, defy. If I tell you
to do something and you do not do it, you are defying my orders. अगर मैं आपको कुछ करने के लिए बोलता हूं, अगर आप नहीं करते हो, that is defiance. That is defiance, and that is what we call is defying of orders. Nobody can defy the orders of Modi. Modi के orders का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता. That is defy. Same meaning as challenge. This word is a very common word. Breach of peace, breach of contract. It's a very nice word. Breach of peace, breach of contract. Anything, let's say I and you and I sign a contract. Let's say it's a contract for 1 year. आपने बीच में ही उसको तोड़ दिया and after 3 months you say कि अब मैं आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा, तो somehow you are breaching the contract. आप उसको challenge कर रहे हो, उसको disobey कर रहे हो. Yes or no? So all these words are main thing. इसको पढ़ाने का रीजन ये था कि अभी जो रूल हम लोगों ने पढ़ा उसी को हम फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ऐसे जो क्वेश्चंस अभी बताऊंगा वैसे क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट. Someone is asking कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं. आई हैव अ क्वेश्चन कि कौन सा चैप्टर चल रहा है. ये बेसिक टेंसेस स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो आपको कई सारे चैप्टर्स में काम आएगा. एक्टिव पैसिव, नरेशन, डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बहुत जगह ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत जगह काम आएगा. तो टेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी पूरी जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि जब हम टेंसेस स्टार्ट करें ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना हो. सो स्टूडेंट्स, इफ यू कैन सी, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कुछ एरर्स हैं. जो रूल हमने पहले पढ़ा था उसी पे बेस्ड है विद माइनर चैलेंजेस. जो हमने पढ़ा था उस रूल को अब हम चैलेंज करेंगे. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. आई गिव यू 30 seconds एंड आई गिव यू अ हिंट. स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, मूव टू द राइट, यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई द सेंटेंस. आप लेफ्ट से स्टार्ट करिए, राइट की तरफ मूव करिए, आप देखोगे कि आंसर सही होगा. ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एक स्टेटमेंट लिख देता है, एक सेंटेंस लिख देगा, फॉलोड बाय 3 to 4 डिफरेंट सेट्स, 3 to 4 आंसर्स, और पूछेगा इनमें से सबसे सही कौन सा है. सो आई गिव यू 30 to 35 seconds एंड आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. सो प्लीज टेक योर टाइम. I can see Shubhendu. Shubhendu, he has answered it correctly. Shubhendu is right. Bhavani is right. I can see many students answering it correctly. Mintu, yes, perfect. Chandan is absolutely fine.
Anurag, yes, he has answered it correctly. Rishi, you are right. Gaurav. So I can see the answers coming up and many of the students have answered it correctly. So it is a wonderful error after what he is doing and where he is studying. Shivam, absolutely correct. Yeah, Shivam is right. So I can see majority of the students answering it correctly, but therein before we proceed, I'll give you the concept now. See, it's a very simple thing. I can see many of them answering it, but let us understand the concept now. If you can see what is a statement, he wants to know what is he doing and where is he staying. So I told you one thing on day one कि जब भी sentences बड़े हों आप उनको उसके components पे तोड़ दीजिए, break it into various components, अलग अलग components में तोड़िए, आपके लिए error find करना उतना easy हो जाता है. Look at the first one. He wants to know what is he doing and where is he studying. At the end you have a full stop. You can see he wants to know is a statement. He wants to know is a statement. What in the middle of the sentence? आपने कहा कोई भी WH family अगर sentence के बीच में आती है तो किसका काम करती है? Conjunction का. So now this becomes your conjunction. Now any WH family अगर sentence के बीच में है किसका रोल प्ले किया? Conjunction. अब मैं आगे बढ़ता हूं. Is आपका क्या है? Helping verb. ही क्या हो गया? Subject. Helping verb पहले, subject बाद में, वो क्या होता है? Question. अब हमने पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टेटमेंट से स्टार्ट हो, WH फैमिली एज अ कंजंक्शन, फिनिश भी किस पे होना चाहिए? स्टेटमेंट. सो हाउ डू आई मेक ए स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूं? सब्जेक्ट को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इज इधर, सो इट बिकम्स व्हाट ही इज डूइंग. नाउ दिस इज योर स्टेटमेंट. नाउ प्रोसीड फर्दर. You have and you have where. Can someone tell me which one is the major conjunction here? And is a major conjunction or where is the conjunction? हमने पढ़ा था कोई भी WH फैमिली अगर सेंटेंस के बीच में आएगी तो किसका रोल प्ले करेगी? कंजंक्शन. लेकिन and is the big boss. जब हम लोग कंजंक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हमने एक रूल पढ़ा था, जब भी हम कंजंक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जब भी कंजंक्शंस की बात आती है, what are the two most basic conjunctions that come to your mind? ऐसे कौन से दो बेसिक कंजंक्शंस है जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करते हैं जैसे ही आप कंजंक्शंस के बारे में सोचते हो? कैन समवन आंसर? आई विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स. सबसे दो बेसिक कंजंक्शंस क्या है? एंड एब्सोल्युटली करेक्ट. संदीप हैज आंसर्ड इट करेक्टली. एब्सोल्युटली फाइन. यस, Sandeep Parekh, he has answered it correctly. And is the most basic conjunction. Number 2, which one is the most basic conjunction? And है, दूसरा कौन सा है? I'm still waiting for the response. And is correct. Or, okay fine, Sonu, I agree with you. Sonu ने आंसर दिया और that is fine. God bless you. Saurabh Singh has answered it correctly. And but. These are the two basic conjunctions. Thanks Saurabh. Yes, I can see if, but, because yes, there are n number of conjunctions. God bless you. All are fine. But therein, yes, Shubham Raikwar has answered it. Yes, Vidya Rao, Anand. Or I can see majorly many people answering, but the two basic conjunctions are first is and, number 2 is but. The two basic conjunctions. And जब कंजंक्शन का काम करता है तो सिमिलर रैंक, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पैरामीटर्स को जोड़ता है. इट्स प्लस टू अ प्लस, पॉजिटिव टू अ पॉजिटिव, नेगेटिव टू अ नेगेटिव. एंड एक बेसिक कंजंक्शन है जो सिमिलर रैंक, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पैरामीटर को जोड़ता है. अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा. और बट जो होता है कॉन्ट्रास्ट वाली चीजों को जोड़ता है. इफ आई यूज द वर्ड कॉन्ट्रास्ट, इट मीन्स अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा? नेगेटिव. अगर इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होगा? पॉजिटिव. नाउ सो एंड और बट सबसे बेसिक कंजंक्शंस हैं एंड दे आर द बिग बॉसेस. इनके सामने किसी की भी नहीं चलती. नाउ दे आर द बिग बॉस. प्रोसीड फर्दर. Now, where is also a WH family, which is fine, लेकिन and is the big boss.
नाउ एंड एक्ट्स एज द मेजर कंजंक्शन हियर, और आपने कहा एंड जब कंजंक्शन होता है तो सिमिलर चीजों को जोड़ता है. इफ आई यूज द वर्ड सिमिलर, इट मीन्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. इट मीन्स मैं एंड के एग्जैक्टली पहले चेक करूंगा क्या है. एंड के एग्जैक्टली पहले चेक करो क्या है, स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है. एंड के एग्जैक्टली पहले, इज दिस अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन? कैन somebody आंसर? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. एंड के एग्जैक्टली पहले चेक करिए, स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है. इफ यू कैन सी एंड के एग्जैक्टली पहले आपने रेक्टिफाई किया, ही इज डूइंग, इट मीन्स ही आपका सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब विच इज अ स्टेटमेंट. अगर एंड के एग्जैक्टली पहले स्टेटमेंट है तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट. क्योंकि एंड जब कंजंक्शन होता है सिमिलर चीजों को जोड़ता है. इट मीन्स मैंने देखा ये WH फैमिली है विच इज फाइन. इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट. इसका स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, जब एंड के एग्जैक्टली पहले स्टेटमेंट है तो एंड के जस्ट बाद भी स्टेटमेंट होना चाहिए. इसका स्टेटमेंट बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूं, वेयर ही इज स्टेइंग हो गया आपका स्टेटमेंट. All right. Himesh, Deepak, fine. Yes. Almost everybody is participating. Thanks, Prashant. Rashma is correct. Tarun Dutt. And that. Okay, fine. That is also a conjunction. We will talk about further. Well, I'm going to write one more question. Same concept, same question. And the question that I'm going to write, जो question लिखने जा रहा हूं, वो question पूछा है sentence improvement में. Concept and everything remains the same. I've given you a hint. आप left से start करोगे, move to the right. And that will help you with the concept. Again, a question from sentence improvement, basic sentence structure. Statement, the statement has been given to you. Statement आपको दे दिया है. जो portion underlined है, उसको आपने improve करके लिखना है. So I'll give you 30 seconds and I'll wait for your response. Do you know who the author is and what the name of the publisher is? God bless you, Raghavendra. Raghavendra has answered it correctly. Yes. The author is and the name of the publisher is. Fine, Ravindra. Ravindra is correct. Gaurav Giri says no error. No, Gaurav, there is an error. Gaurav says no error. इस sentence में गलती है sentence improvement का. Who the author is and what the name of the publisher. Rise, Gotham. Gotham has answered it correctly. Who the author is? Priyanshu, you are correct. Yes. Who is the author? Vidya Rao is correct. Yes. Pritesh says this one is a right sentence. I'm sorry, Pritesh. Sentence में गलती है. ये question 2017 में आया हुआ है. इस sentence में एक गलती है.
Rashmi Rajput, fine. You are correct, Rashmi. We have Anuj. Anuj is also correct. Shubham Raikwad. The statement दिख रहा है. अच्छा, someone says कि ये नहीं दिख रहा है. अच्छा, now I'll repeat the concept for you. जो portion underline किया है उसको इंप्रूव करके लिखना है. आई हैव गिवन यू ए हिंट. जो चीजें मैंने आपको पहले बताई थी केवल उन्हीं चीजों को आप फॉलो करते जाओ. स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, मूव टू द राइट. नाउ डू यू नो, आप देखिए सेंटेंस के एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क. तो मैंने क्या बताया था, जो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करता है वही डिसाइड करता है व्हाट पंक्चुएशन नीड्स टू बी सप्लाइड. सेंटेंस की स्टार्टिंग मेरी क्वेश्चन से हुई, इसलिए लास्ट में आई हैव अ क्वेश्चन मार्क, विच इज फाइन. डू यू नो एक क्वेश्चन है. अब हम आगे बढ़ते हैं. फिर हमने बताया था कि एनी WH फैमिली इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस किसका काम करेगा, कंजंक्शन, विच फॉलोज द रूल. नाउ मैं आगे बढ़ता हूं. इट सेज इज द ऑथर. इज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वॉट एवर यू कंसिडर. नाउ दिस इज योर सब्जेक्ट. अब इसको आगे देखिए, इज द ऑथर, इज दिस अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, बट रूल सेज अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, बीच में WH फैमिली एज अ कंजंक्शन, तो स्टेटमेंट पर ही फिनिश होना चाहिए. सो हाउ डू आई मेक अ स्टेटमेंट, हु द ऑथर is. Now this becomes a statement. Proceed further. And what? Which one is a major conjunction? Which one is a major conjunction? What or and? Now and is the big boss as discussed. Now and is a big major conjunction. और and जब conjunction होता है तो what did we discuss? आपने कहा and जब conjunction होता है तो similar चीजों को जोड़ता है. and के exactly पहले चेक करिए, आपने क्या लिखा, statement, तो उसी का सिमिलर रैंक, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर पैरामीटर. तो एंड के एग्जैक्टली बाद भी क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट वाला ही पैटर्न आना चाहिए. मैं एंड के आगे देखता हूं. व्हाट इज अ WH फैमिली. इज आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. क्या ये क्वेश्चन का पैटर्न है कि स्टेटमेंट का, ये क्वेश्चन का पैटर्न है. स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा मैं, इज यहां है, द नेम ऑफ द पब्लिशर यहां, इस पूरे को उठाइए, आप इसको यहां ट्रांसफर करेंगे और इस कहां चला जाएगा, लास्ट में. तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, हु द ऑथर इज एंड व्हाट द नेम ऑफ द पब्लिशर इज. होप एवरीवन अग्रीज ऑन दिस. आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. All right, thank you, Saurav. So hopefully everyone is clear on this part. May we use two conjunctions together? Why not? We always can use two conjunctions together. That is not a problem. Yes. All right, thank you. So everyone, I guess, agrees on this. I have got majority of the students answering positively. Yes, thank you. Thanks, Sudhir. Thanks, Neha. Thanks, Mintu. Thanks, Shubham. Everyone agreeing on to this. Now I can see all the whiteboard. Thank you. Thank you, Shubham. Hopefully you can see the board now. I'm sorry for the inconvenience. Well, Savi Rathod has a question कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा. Yes, जो लास्ट में सेंटेंस लिखा था उसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. क्यों? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग आपने किससे करी थी, क्वेश्चन से. Well, Himanshu, I'm really sorry. There was some problem with the camera. Hopefully everything is clear now. Everything has been set
appropriately for you. अब आपको दिखेगा बोर्ड पे. Well, we have Vijay Verma. He says कि 45 hours दिए हैं क्लास में, so hopefully we'll extend it for another 5 to 6 hours, but 45 hours is too much. We can actually connect it once we are done with the basic sentence structure. There will be 3 to 4 topics. There will be 3 to 4 topics that will take your time. 3-4 topics में time लगता है, because वो basic structure है, active, passive, narration, सब में काम आएगा. That will consume time. बाकी noun, pronoun, adjective, adverb, these are not very massive topics. Some set rules उसको follow करना है. एक बार आपने questions कर लिए, lifelong set हो जाएगा. It's going to work. We are going to work onto that. There are certain topics deliberately we are spending time so that you can understand the basic concept. जैसे tenses, there are many rules. Is it not just about tenses? आप देखोगे tenses पूरा connected है. Active, passive, narration, modals, conditional sentences. Maximum topics आपका tenses है. Tenses पे अगर base strong रहा, उसके बाद आप घर पर बैठ के, even if I send you across the notes भी भेज दूंगा, it is going to work for you. लेकिन कम से कम बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए. जो भी बेसिक चीज होगी वही चीज आपको किल करती है एग्जाम में. एकदम बेसिक चीजें. जो भी टाइम फ्रेम दिया है, once we discuss the basic things, I send you across the questions. Once I send you the questions, go through the questions, you come here with your doubts, we'll sit and talk about it. इसलिए बेसिक जो भी चीज जितनी बेसिक होती है, बाद में एग्जाम्स में जाकर वही मनीफोल्ड मल्टीप्लाई करके मैसिव बन जाती है. चीजें भले बेसिक हो, मैंने लाइफ में वन रूल इज देयर, एनीथिंग विच इज सिंपल इट इज बोरिंग, बट ट्रस्ट मी इट विल गेट यू सक्सेस. जो भी चीज बोरिंग है वो अच्छी चीज होती है. जब तक आप चीजों को रिपीट नहीं करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. वेरी मेनी बेसिक थिंग्स एक्चुअली किल यू एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन. भले ही टाइम लग रहा है, दैट इज फाइन, द टाइम इज ओके. इवन if you want, well, Chandan, we have Chandan coming here. He is talking about vocab. Yes, I will rope in one gentleman who is one gentleman. एक vocab के लिए बिल्कुल करेंगे हम लोग. और उसके लिए what I would suggest is like, I'll have this gentleman set in for you. I'll rope in him. I'll talk to him. He will set the vocab. 1 or 2 days will be set for vocab only. But therein for vocab, what I would suggest, the previous 2-year examinations, 2017, 2016, all the previous year mock tests, the questions that will be sent across to you, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चंस भी करते हैं. दैट इज मोर देन इनफ. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू. उतना बहुत है, बहुत मैसिव. या एडिटोरियल 1 पेज इफ यू फॉलो 1 एडिटोरियल एवरी डे, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. All right. So people are asking about what if the notes. Yes, I've already planned it. We have already planned it. We'll send you the notes that we already have. Those are our class notes. Those class notes contain almost everything from your pre to mains. That will cover everything. That entails, that comprises everything what is pre and mains in relation to grammar. Grammar से related जो भी चीज होगा, everything will be sent across to you once we have the registration complete. हम सब कुछ भेजेंगे. You can sit at your home, go through the notes. We'll come and talk about questions straight away. So time is more than required. Time is enough. Time is sufficient. If you simply just go through the notes, that is enough. And we have some students talking about idioms and phrases. Idioms and phrases will be sent across to you through the PDF file. We'll send across to you onto your email address. You can go through the idioms and phrases. If you go through the mock test, 2 years of mock test, close to 80 or 90 mock tests. Once you complete 80 or 90 mock tests, that is more than enough. Vocab portion, you can be all relaxed and rest assured that is more than enough. Now, I will proceed further. I'll write the table for you. I'll just give you a very brief view what all tenses
include and what do we actually work in tenses, because tenses will help you in active, passive, narration. So basically we have 4 questions on tenses. There could be a question or 2, but tenses is your very base. So I'll just give you some basic idea. I'll just write a table, just go through the table, it will help you. So guys, all right. So tenses, uh, the questions will be sent across to you in relation to tenses. Simply go through the questions, try to find out the errors. आप questions के through जाइए, errors find करिए. Whatever doubts you have, we'll discuss in the next class. So I'm going to give you an overview of tenses. The first we are going to start is present simple. प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कहां कहां होता है. प्रेजेंट सिंपल एक बेसिक, उससे पहले जब हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करें उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे पहले हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है. डू डज आपका हेल्पिंग वर्ब है. आपका सेंटेंस पॉजिटिव है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, उसके बाद आपका वर्ब आता है. फिर एस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर.
जब नेगेटिव होता है, आपने सब्जेक्ट लिखा, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज का सहारा लेते हैं, और जैसे ही सेंटेंस में डू डज इंट्रोड्यूस हो गया, मेन वर्ब में हम कोई भी टैंपरिंग नहीं करते हैं। वो दिक्कत केवल तभी तक रहती है एज लॉन्ग एज द सेंटेंस इज पॉजिटिव। द मोमेंट यू हैव डू डज इनटू द सेंटेंस, सेंटेंस नेगेटिव है, अब यहां पे वर्ब में एस या यस लगाने की टेंशन नहीं है। नाउ इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस, हमने पढ़ा है क्वेश्चंस में सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय द सब्जेक्ट एंड दिस इज योर मेन वर्ब। जैसे ही डू डज आ गया, मेन वर्ब में कोई भी छेड़खानी हम नहीं करते, देयर इज नो टैंपरिंग, ऐसे या यस लगाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से बताइए कौन सा सही है? जो नॉट की पोजीशनिंग है, इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। जो नॉट की पोजीशनिंग है, जो नॉट की पोजीशनिंग है वो सब्जेक्ट के बाद होगी कि सब्जेक्ट से पहले? आई बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। Well, Raghavendra says first is correct. Well, Raghavendra, both are correct. जो अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऑप्शंस में रहते हैं, whenever you have a sentence with a question, if it is starts with a helping verb, if the sentence is a question, this is your helping verb, this is your subject. जो नॉट की पोजीशनिंग है, ये सब्जेक्ट के बाद भी हो सकती है, सब्जेक्ट से पहले भी। बोथ आर करेक्ट। यू हैव योर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये जो नॉट की पोजीशनिंग है, सब्जेक्ट के बाद भी जा सकती है, सब्जेक्ट से पहले भी। अगर सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, इट इज ऑलवेज इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो वो एक मिस्टेक है, वो गलत माना जाएगा। अगर आप इसको लिखते हैं डज नॉट ही स्टडी, दैट इज रॉन्ग। आप लिखेंगे डजंट ही स्टडी। सो नॉट की पोजीशनिंग है, सब्जेक्ट के बाद भी जा सकती है, सब्जेक्ट से पहले। आई हैव रिटन 3 sentences फॉर यू। ऐसे क्वेश्चंस आपको एरर में आते हैं, और एक्टिव पैसिव में देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। ऑप्शंस में नॉट की पोजीशनिंग को फ्लक्चुएट करता है। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट ये क्वेश्चंस आते हैं। कैन समवन टेल मी 1 2 3 कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है? Both are correct. So the 3 sentences are, does he not study, does not he study, or doesn't he study? If you look at the first one, does is a helping verb, he is your subject. जो not की positioning है वो subject के बाद है, which is fine. This is your main verb, which is absolutely fine. Now look at the second one. Does is a helping verb, not, he is your subject, study is your main verb. सब्जेक्ट से पहले मैंने नॉट रखा, विच इज फाइन, लेकिन क्या मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रखी? नाउ दिस इज रॉन्ग। नाउ लुक एट द थर्ड वन, डजंट ही स्टडी। डजंट इज अ हेल्पिंग वर्ब, ही इज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले नॉट है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। तो नंबर 1 एंड नंबर 3 आर करेक्ट, नंबर 2 इज रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्टिव पैसिव में देता है, जहां पे नॉट की पोजीशनिंग को लेकर वो फ्लक्चुएट करते हैं। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन यू विल नॉट फाइंड इट इन बुक्स, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे आते हैं। सो होप एवरीवन इज क्लियर। सो आई कैन सी तरुण, तुषार, शुभेंदु 1 and 3, Sachin and Avasti 1 and 3, absolutely correct. Himanshu says 1. 1 and 3 are correct. Right, Udit. Subject से पहले, which is fine. Satish Kumar, second is wrong. Navreet, you are absolutely correct. Second is wrong. तो जब भी आप एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आप देखोगे ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे हेल्प करेगा। जब भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन है, आई विल रिपीट, जब भी कोई सेंटेंस क्वेश्चन है, आप हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट लिखो। जो नॉट की पोजीशनिंग है, सब्जेक्ट के बाद भी जा सकती है। अगर सब्जेक्ट से पहले लिखा जाए, ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, दे आर सपोज टू बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होने चाहिए। अगर वो अलग अलग है तो वो एक मिस्टेक है। नंबर 3 सी, सब्जेक्ट से पहले आपने लिखा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, जो रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसमें कोई भी चैलेंज नहीं।
ये वाला पॉइंट होपफुली सबको क्लियर है. चलिए. Today, so Garima Dahiya says 1 and 3 are correct. Abhijit, Ashutosh Kumar, he is right. Shankman, so I can see majority of the students answer it correctly. Hope the concept is clear. Now, I said when we read tenses, I will mix and match. I'll teach you things which are very central to your examination, very critical from your examination perspective. Today, we'll start off one topic which is inversion. इन्वर्जन एक टॉपिक है, वो आता है एडवर्ब में, लेकिन मैं आपको यही पढ़ाऊंगा. द रीजन बीइंग, जब तक आप एडवर्ब पढ़ते हो, क्योंकि टेंसेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बेस्ड सारे टेंसेस ही होते हैं. सो द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज inversion. I will write it on here. I will write here. It's a very important topic. It's a very important topic, inversion. Inversion एक adverb का topic है. मैं आपको tenses में ही पढ़ाऊंगा. क्यों? The reason being, जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन्वर्जन वाले, वो टेंसेस बेस्ड ही आते हैं. लेकिन जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो मेक इट अ पॉइंट लाइक केवल एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो केवल एडवर्ब, आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो केवल आर्टिकल. सो दैट इज द फ्लॉड स्ट्रैटेजी. दैट इज अ वेरी फ्लॉड स्ट्रैटेजी. यू नीड टू बी वेरी फ्लूइड, यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल. पॉइंट इज इन्वर्जन मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा, टेंसेस में ही पढ़ाऊंगा. एडवर्ब का टॉपिक है, लेकिन आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस इन यू, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंड व्हाट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. देयर इज अ डिफरेंस. कम्युनिकेशन एंड ग्रामर बोथ आर डिफरेंट. हमें कई बार लगता है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन का हिस्सा है वही ग्रामेटिकली करेक्ट है. एट टाइम्स कम्युनिकेशन अलग पोल है, ग्रामर अलग पोल है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद इनवर्जन. मैं आपको टेंसेस में ही पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट सिंपल बेस्ड, फिर लास्ट में बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चंस कहां पे यूज होते हैं. सो इनवर्जन इसी में स्टार्ट करेंगे, टेंसेस में ही. मैं प्रेजेंट सिंपल को ही बेस बनाकर यहां आपको पढ़ा रहा हूं. I'll have to announce it. I can say it online. So guys, we'll just shut off for the next 2 to 3 minutes, 3 to 4 minutes. I'll take a breather. We'll come back और इस important topic हम लोग पढ़ेंगे. And trust me, you will enjoy this topic. It's a very critical topic, very important topic. मैंने क्या बोला, आपको tenses में ही पढ़ा दूंगा. आप केवल tenses नहीं पढ़ोगे. At the end of the session, you will understand a very simple rule. Trust me, which will help you. So I'll just take a breather. 3-4 मिनट का breather लेते हैं, and I'll be live once again.
All right, thank you guys, and my apologies for the delay. All right, so I was outside for tea. I had my break. Thank you so much for cooperating with me. So the camera needs to be adjusted. हाँ, कहाँ पे है? ऊपर F5. All right, thank you. So I've written the question for you and then I'll make you understand the concept. फिर मैं concept समझाता हूँ. देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एडवर्ब से रिलेटेड है, लेकिन मैंने बोला जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो टेंसेस बेस्ड आते हैं. सो आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट फॉर यू, सो आई विल गिव यू सम टाइम. प्लीज फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर. सेंटेंस के किस पार्ट में एक एरर है, प्लीज उसको फाइंड करिए और मुझे बताइए. आई विल वेट फॉर योर. होप द स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. जो स्टेटमेंट लिखा है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक एरर है. ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू इनवर्जन. तो बताइए कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. सो होपफुली एवरीवन कैन सी द सेंटेंस. अब क्या सेंटेंस आपको नजर आ रहा है? So we have many students responding, and majorly many of the students responding correctly. Yes, A part में error है. That is absolutely correct. The A part has an error. Manish says C. I'm sorry, Manish. That is wrong. Do after seldom. God bless you. Correct. Yes. Yes. So majority of the students have answered it correctly. A part of the sentence has an error. अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है. इफ यू रीड द एंटायर सेंटेंस सेज सेल्डम द मिनिस्टर्स लिसन टू द कंसर्न्स ऑफ द पुअर. कि जो मिनिस्टर्स हैं वो गरीबों के कंसर्न्स को मुश्किल से ही सुनते हैं, ऑलमोस्ट कभी नहीं सुनते हैं. नाउ द रूल सेज इन्वर्जन मीन्स होता है उल्टा, एग्जैक्टली द ऑपोजिट. किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? द फर्स्ट यू हैव द सब्जेक्ट एंड देन द हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट यू हैव द सब्जेक्ट फॉलोड बाय द हेल्पिंग वर्ब. लेकिन इन्वर्जन का मीन्स होता है उल्टा. एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है. जब हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो इन्वर्जन मीन्स होता है उल्टा. इन्वर्जन सेज ठीक उल्टा हो जाता है. पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट. पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट. ये इन्वर्जन रूल कहता है. इन्वर्जन क्यों फॉलो करते हैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. अब देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, और जनरली वो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां पे ये इन्वर्जन रूल हम फॉलो करते हैं. एक वर्ड मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, द वर्ड सेल्डम. सेल्डम मीन्स होता है ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट कभी नहीं. इफ यू लुक एट द वर्ड सेल्डम, द मिनिस्टर्स आपका सब्जेक्ट हो गया, लिसन इज योर मेन वर्ब. सो द रूल सेज
सेल्डम है, उसके एग्जैक्टली बाद कभी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है, सेल्डम है, अभी केवल सेल्डम के बारे में बता रहा हूं, बाकी मैं पूरी लिस्ट लिख दूंगा जहां पे ये रूल फॉलो होगा। इस सेंटेंस को इंप्रूव करने के दो तरीके हैं। ये जो सेल्डम है, इसको उठाकर आप एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले लिख दें और देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। द मिनिस्टर्स seldom listen to the concerns of the poor. द मिनिस्टर्स आपका सब्जेक्ट हुआ, सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलमोस्ट कभी नहीं, लिसन इज योर मेन वर्ब और सेल्डम की पोजीशनिंग एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। तो गलती ए में थी, सेल्डम की एग्जैक्टली बात कभी भी सब्जेक्ट नहीं है। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं अभी लिस्ट में लिखूंगा। सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो कॉस्ट। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके एग्जैक्टली बाद आप कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखते हो। या तो उस वर्ड को आप उठाएं, एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले पोजीशन कर दे, एक तरीका ये है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। अब देखिए सेल्डम की जो पोजीशनिंग है, इट इज एग्जैक्टली बिफोर द मेन वर्ब। सेल्डम हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, उनकी पोजीशनिंग मेन वर्ब से पहले हो सकती है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। दूसरा तरीका है इनवर्जन। यही स्टेटमेंट इनवर्जन के तरीके से भी सही कर सकते हैं। अगर मुझसे पूछ रहा है एरर क्या है, मैंने ए में मार्क कर दिया। अगर पूछता है सेंटेंस को इंप्रूव करके लिखो, ये भी तरीका सही है। और दूसरा रूल फॉलो करते हैं इनवर्जन। इनवर्जन केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल तक सीमित नहीं है, इनवर्जन सभी टेंसेज में अप्लाई होता है। irrespective of any tense, it applies in all the tenses, it applies to all the tenses. See, ये टेंस देखिए, द मिनिस्टर सब्जेक्ट है, लिसन इज योर मेन वर्ब। आपका टेंस कौन सा हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो सबसे पहले मैंने सेल्डम लिखा। अब जब पता चल गया कि सेल्डम इज नेवर फॉलोड बाय ए सब्जेक्ट, सेल्डम की एग्जैक्टली बात कभी सब्जेक्ट नहीं आता है, तो जो भी टेंस दिया रहे उस टेंस का करस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय द सब्जेक्ट। तो मैंने देखा कि दिस इज प्रेजेंट सिंपल, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है। तो द मिनिस्टर्स के हिसाब से बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज। द मिनिस्टर्स प्लूरल है तो इसके साथ आएगा डू, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट द मिनिस्टर्स, फिर देखिए आपका मेन वर्ब लिसन टू द कंसर्न्स ऑफ द पुअर। अब देखिए सेल्डम की एग्जैक्टली बात मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है और फिर सब्जेक्ट लिखा है। मैंने ठीक उल्टा कर दिया, इसीलिए इस रूल को क्या कहते हैं, इनवर्जन। इनवर्जन मीन्स उल्टा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। सेंटेंस को आप ऐसे भी सही कर सकते हैं और इमर्जन के हिसाब से भी सही कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कभी क्वेश्चन आए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट दिया है, कभी कभी वो स्टेटमेंट सही भी होते हैं, बट देयर इन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक होता है डिटेक्टिंग एरर्स, एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि एरर क्या है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें क्या है, कोई एरर नहीं है, लेकिन यही दोनों क्वेश्चंस अगर कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, ऐसा इज फॉर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी इनवर्जन के रूल को फॉलो करता है उसको एक बेहतर स्टेटमेंट मानते हैं। द रूल, एनी सेंटेंस दैट फॉलोज द इनवर्जन, वो एक बेहतर स्टेटमेंट माना जाता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको देता है, यही क्वेश्चन लिखा है और इसको अंडरलाइन कर देता है, ऑप्शंस में दोनों आ गए। जब मुझे पता चला कि सेल्डम की एग्जैक्टली बात सब्जेक्ट नहीं आएगा और ऑप्शंस में दोनों आ गए, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और सेंटेंस को पूछा है कि बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है जहां सेल्डम की पोजीशनिंग सेंटेंस के बीच में मेन वर्ब से पहले, ये वाला भी करेक्ट है। यहां पे देखिए
इन्वर्जन फॉलो किया है, जो टेंस था उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आया फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, ठीक उल्टा हो गया और ये आपका मेन वर्ब, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही इसको अंडरलाइन किया है और पूछेगा इसको बेहतर तरीके से लिखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी इन्वर्जन के रूल को फॉलो करता है दैट इज अ मच बेटर स्टेटमेंट। जो भी इन्वर्जन के रूल को फॉलो करेगा वो एक बेहतर स्टेटमेंट होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। होपफुली एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस। नाउ किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मिनिस्टर्स के हिसाब से यहां डू क्या है और डस। देखिए द मिनिस्टर्स प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल होती है, इसलिए डू। अगर यहां केवल मिनिस्टर रहता जो सिंगुलर है तब मैं डस का इस्तेमाल करता, क्योंकि मिनिस्टर्स प्लूरल है इसलिए डू। Very good. I can see majority of the students answering it. Bhavani, yes. Clear है सर। शुभम says clear है सर। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल दूंगा इसी पे बेस्ड। चलिए एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और, फिर मैं सारी लिस्ट लिख दूंगा जहां जहां ये रूल फॉलो होता है। वेल मनीष हैज अ क्वेश्चन। मनीष पूछते हैं कि क्या हम इसका किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल मनीष, यू कैन यूज दिस रूल इन एनी ऑफ द टेंसेस। किसी भी टेंस में इस रूल का इस्तेमाल हो सकता है। अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे थे, प्रेजेंट सिंपल हल्का सा क्रिटिकल है इसलिए मैं आपको टॉपिक यहां पढ़ा रहा हूं। एक बार प्रेजेंट सिंपल पे समझ गए, आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स जहां पे और क्लैरिटी आएगी, और इसके क्वेश्चंस आपको कल भेज दिए जाएंगे इन्वर्जन वाले। आप देखोगे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही सारा कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इट सेज कि नो सूनर द क्लर्क सीज द मैनेजर देन ही स्टार्ट्स वर्किंग, कि जो ही क्लर्क जो है मैनेजर को देखता है वो काम करने लगता है। सो आई जस्ट वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ये उसी रूल को फॉलो कर रहा है। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, और इसको बेहतर तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। वेल आई कैन सी यस अनुज, अनुज इज राइट। वर्मा, okay, now Mr. Verma has changed the tense. I'm sorry. Himanshu, yeah, correct, yes. No sooner than, God bless you. Madhuri, that is what? B. Anand Kumar says B has an error. I'm sorry. That is correct. A part is an Atul. All right. All right. Dan is error. Okay, fine. No sooner. No sooner the clerk. Okay, fine. Does the clerk the see the manager? God bless you. Rajni is correct. Yes. All right. Now we will discuss this concept. अभी मैं लिस्ट सारी लिख दूंगा जहां पे ये रूल फॉलो होता है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जहां पे ये रूल फॉलो होगा। Now it says the sentence स्टार्ट हुआ है no sooner से, उसके बाद है द क्लर्क। द क्लर्क आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। सीज क्या हो गया? मेन वर्ब। वेरी गुड। नो सूनर द क्लर्क सीज द मैनेजर देन ही स्टॉप्स वर्किंग। कई लोगों को लग रहा है कि ये देन गलत है। दैट, वो वाला जो देन है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये देन एक कंजंक्शन होता है, ये देन एक कंजंक्शन होता है। सूनर का पेयर क्या होता है? देन। इसमें इस पोर्शन में कोई भी गलती नहीं है। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चंस दे देता है, यहां पे नो सूनर लिखेगा और यहां पे देन लिख देगा,
देखिए देन एक कंजंक्शन नहीं है, देन कंजंक्शन नहीं है, देन बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसकी मीनिंग तब होती है, तब। ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, कंजंक्शन नहीं होता है। और यहां पे जो देन लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एग्जाम में क्वेश्चंस देता है, यहां सही लिखेगा, नो सूनर लिखेगा, लेकिन वहां पे क्या लिख देगा, THEN, जो कि क्या है, गलत। कंजंक्शन आपका क्या होता है, THAN। नाउ देन कैसे कंजंक्शन होता है, दो बेसिक स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। राम इज टॉलर, फुल स्टॉप, लक्ष्मण इज टॉल। Ram is taller, full stop, Lakshman is tall. If I join these two statements, देखिए, Ram is taller than, बताइए ये वाला than आएगा कि ये वाला THAN, क्योंकि कंजंक्शन क्या होता है, than। तो इस पोर्शन में कोई भी गलती नहीं है। जो क्वेश्चन था वो इन्वर्जन बेस्ड था। अब देखिए, नो सूनर भी वही रूल को फॉलो करता है, उसके एग्जैक्टली बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट क्या था, द क्लर्क। तो जब मुझे पता चल गया कि नो सूनर के एग्जैक्टली बाद ये नहीं आएगा, तो इसको सही करने के दो तरीके हैं। इस पूरे नो सूनर को मैं मेन वर्ब से पहले ट्रांसफर कर दूंगा और लिखूंगा द क्लर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, नो सूनर द क्लर्क नो सूनर सीज द मैनेजर, दिस इज करेक्ट। अगर मैं इन्वर्जन के तहत फॉलो करूंगा तो मैंने बोला सभी टेंसेस में लागू होगा। मैंने देखा जो कुछ आंसर्स आए से, देयर वर सम आंसर्स, कुछ लोगों ने टेंस चेंज कर दिया। बात हो रही है प्रेजेंट सिंपल की, बात हो रही है प्रेजेंट की, तो मैं डिड का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो भी टेंस रहेगा उस टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सो आइडेंटिफाई व्हाट टेंस इज इट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। तो मैंने नो सूनर लिखा। जब इसके एग्जैक्टली बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। द क्लर्क आपका सिंगुलर है, उसके हिसाब से क्या आएगा, डज। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब। द क्लर्क हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, नाउ इन्वर्जन। एक बात बताइए, यहां पे सीज आएगा कि सी आएगा। मैंने बताया था जैसे ही सेंटेंस में डू डज इंट्रोड्यूस होता है, मेन वर्ब में हम कोई भी टैंपरिंग या छेड़खानी नहीं करते हैं, तो यहां पे सी रहेगा। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, नो सूनर डज द क्लर्क सी। नाउ दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज योर सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया, इन्वर्जन रूल। तो इस सेंटेंस को मैंने दोनों तरीके से सही किया। इन्वर्जन मीन्स उल्टा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट। मैंने जो रिस्पॉन्सेज देखे थे, कुछ लोगों ने यहां पे डिड लिखा था। डिड लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। देखिए डिड सही है अगर सेंटेंस होता पास्ट सिंपल का। अगर सेंटेंस पास्ट सिंपल का होता तो नो सूनर डिड द क्लर्क सी द मैनेजर लिखता। लेकिन मैंने कहा जो भी टेंस रहेगा, अगर हमें सेंटेंस को इंप्रूव करना है, हमें यह भी मेंटेन करना होगा कि प्रेजेंट सिंपल के ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। अगर पास्ट सिंपल का कोई सेंटेंस रहता तब मैं किसका इस्तेमाल करता, डिड का। सो आपने देखा इसी सेंटेंस को, यू कैन सी वी कैन रेक्टिफाई द सेम सेंटेंस इन टू डिफरेंट वेज। नो सूनर को आपने मेन वर्ब से पहले ट्रांसफर किया विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। द क्लर्क, नो सूनर, द क्लर्क सिंगुलर है तो देखिए सीज आया, विच इज फाइन इन्वर्जन के हिसाब से। नो सूनर डज द क्लर्क सी द मैनेजर, और लास्ट में यू हैव अ फुल स्टॉप। स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आए। ये आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी इन्वर्जन को फॉलो करेगा उसको एक बेहतर स्टेटमेंट मानते हैं, इसलिए क्योंकि वहां बात होती है एम्फेसिस की। सो होप आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्सेज। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। Saurav Guha says, no. See, we cannot do that. See, Gaurav. The subject is singular. We have a singular verb does. If it is a plural here, clerks, then we use do. The clerk is singular. We use does. अगर ये प्लूरल होता क्लर्क्स तो मैं किसका यूज करता, डू का। मैंने बात करी है केवल क्लर्क की, जो कि सिंगुलर है, उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, डज। फिर यहां मेन वर्ब में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते यहां इसको क्लर्क लिखें, इसको आप डू कर दें, नो। जब ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। देखिए द क्लर्क डज। अगर यहां क्लर्क्स होता, हैड इट बीन क्लर्क्स, तब यहां पे मैं डू लिखता, तो ये डज ही रहेगा। अगर आप यहां डू लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा।
All right, so hope the concept is clear now. Now I'll write all the words where we follow this rule. और मैंने ये बताया कि इसका इस्तेमाल केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल नहीं, सभी टेंसेस में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो. I will write all the words quickly. So I'll written all the words for you. There are some questions coming up. I will answer the questions. Effect on verb. Okay, that is a very basic one. I will discuss shortly. When do we use do? When do we use does? What is the main verb? Effect on verb. I'll discuss it very shortly. See इसको see क्योंकि I will discuss it very shortly. Just go through it, write all the words, and I'll just quickly explain it to you. कि what is a subject? It's a very basic concept. And see, that is what I said. जो बेसिक चीजें होती हैं वही बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. So let's not be rushing. What is the adverbial expression? Okay, fine. Inversion sentence में cease to see. Only by how? Okay, fine. So these are some phrases. You can see hardly, scarcely, rarely, barely, never, seldom, no sooner. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इनके एग्जैक्टली बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता है. जो भी टेंस रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर या सब्जेक्ट. या आप क्या कर सकते हैं, उसको एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले ट्रांसफर कर सकते हो. नंबर 2, कुछ और भी फ्रेजेस हैं. एट नो कॉस्ट, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वीक. यहां भी इन्वर्जन फॉलो होता है. जो क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. और भी कुछ फ्रेजेस हैं जैसे ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय डूइंग दिस, ओनली बाय टॉकिंग टू द सीनियर्स. वहां भी इन्वर्जन फॉलो होता है. दैट इज फुल इन्वर्जन, जो हम लोग एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे. और अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, और भी वर्ड्स हो सकते हैं. देयर आर मेनी मोर वर्ड्स दैट विल डिस्कस इन डिटेल इन द एडवर्ब चैप्टर. और भी हैं वर्ड्स जो इस रूल को फॉलो करते हैं. डिटेल में जाकर हम एडवर्ब में पढ़ेंगे. ओनली बाई प्लस. ओके फाइन, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन. प्लीज डू द एग्जांपल ऑफ ओनली बाई. सो आई विल राइट वन क्वेश्चन विद ओनली बाई.
Now, such questions come in subject verb agreement. I've written this statement for you because many students were asking only by wala question bataiye. So I've written it for you. Some more questions coming up. Yes. Now I'll write all the questions. Well, we have Neha, Ravindra, who are answering it correctly. Only after. Only after. It is fine. Talking to the manager. He does approve the loan. I'm sorry, Ravindra, that is wrong. Does he approve? Sir, ever be inversion hota hai? Ever be. No, we don't follow. With ever we do not follow inversion. Ever के साथ हम inversion follow नहीं करते. Nobody आने पर क्या करें? Nobody is fine. Nobody में भी inversion follow नहीं होता है. They will approve the loan. I'm sorry. Now see. If you look at the structure, only by talking to the managers, whatever, this is an adverbial expression, only by talking to the managers, only by working hard, only by paying attention to each and every detail, the next part will follow inversion. Whatever sentence is given, only by talking to the managers, only by taking the right steps, only by paying attention to your studies, whatever statement is given. Now this is your adverbial expression. Now we follow inversion here. So it will become, does he approve? Does he approve? See, this is your helping verb. This is your subject. Now this becomes your main. Now come to this one, at no cost. At no cost, the BJP will yield to the Congress. Now BJP is your subject, will yield. So subject will not come first. We'll write it like this. At no cost will the BJP yield to the Congress. Inversion rule. At no cost, I am going to support you, or at no cost am I going to support you. It is going to be at no cost am I going to support you. Now look at number 3. It says, under no circumstances they are going to support you. Again we follow inversion here. One particular phrase, it will be they are or are they. It becomes are they going to support you. It says the managers is plural. No. See, the verb that we supply, it is not according to the managers. It is according to the subject he. He is singular. We'll use does here. So this does according comes to he. This does comes according to he. He is singular. We supply does. Managers is plural.
So Krishan Kumar says manager is plural. See, Krishan, we are not supplying the verb according to the managers. I am supplying this verb according to this particular subject, which is he. He is singular, hence it becomes does. According to he, it is does, not according to the managers. Hope everybody is on the same page in relation to this. Everybody is clear. Is everybody clear on this? So the questions will be sent to you in relation to inversion by tomorrow. There is one more concept in relation to does he approach you hoga in first. Does he approach na? Yes. Arpita, it is going to be does he approve? Does he approve? Well, Prachi has a question. It says, please explain number 2. See, there are more phrases like at no cost, under no circumstances. ये कुछ phrases हैं जहां पे inversion follow होता है. The first thing, at no cost, the BJP will yield to the Congress. कि किसी भी कीमत पर बीजेपी कांग्रेस के सामने हार नहीं मानेगी. Now at no cost के exactly बाद बीजेपी subject आ गया, which is wrong. Inversion rule follow होगा. So it says कि at no cost, पहले helping verb आएगी, फिर क्या आएगी subject. It will become will the BJP yield to the Congress. Well, someone has a question. What does yield mean? Yield is like, yield has got different meanings. See, yield has got different meanings. Yield means output भी होता है, पैदावार को बोलते हैं. Yield का मतलब when you surrender, when you yield to someone, when you surrender basically, when you give up, when you succumb to pressure. Why we not used? Number 3. See. Number 3 says, under no circumstances they are going to support you. Now this is again one phrase जहां पे inversion follow करते हैं. इसके exactly बाद subject नहीं आएगा. Subject क्या है आपका? They, which is wrong. देखिए exactly बात क्या? Subject के बाद helping verb है, which is wrong. Inversion follow होगा. जब inversion follow करते हैं तो helping verb पहले आता है और subject बाद में. तो it becomes under no circumstances are they going to support you. Well, Priyanshu says given. Yes, that is correct. Given. Well, the helping verb will be supplied. जो भी helping verb supply होगा वो tenses के हिसाब से. अगर present simple है तो do does, present continuous है तो is am are, future simple है तो will और shall, उसके ऊपर depend करता है. Well, there is a question coming up कि inversion rule कहां पे follow होते हैं. Inversion rule वहां follow होता है जहां भी किसी चीज को emphasize करके बोलना होता है. Whenever we emphasize, वहां पे हम inversion rule follow करते हैं. जब भी आप emphasize करते हो, किसी चीज को emphasize करना है, वहां पे inversion rule follow होगा. अच्छा, एक कुछ words आ रहे हैं जैसे लोगों के कि इन्वर्जन कहां फॉलो करते हैं. इन्वर्जन बेसिकली जनरली इन्वर्जन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट विल कीप इट वेरी क्रिस्प जहां तक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वो क्वेश्चंस आते रहेंगे. आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग, वो मैं डिस्कस करूंगा. इन्वर्जन बेसिकली वही फॉलो करेंगे जहां पे किसी भी चीज को एम्फेसाइज करके बोलना हो. अब हल्के से कुछ क्वेश्चन आ रहे थे वर्ब से रिलेटेड. मैं एक थोड़ा सा पॉइंट लूंगा जो डिस्कस कर दूंगा. हल्का सा मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, इसको देखिए.
वेल जो यहां पे लिखा हुआ है ये आपको एकदम किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है. देयर आर सम क्वेश्चंस कमिंग अप कि व्हाट डज सबोटाज मीन, सबोटाजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब क्या होता है. आई जस्ट डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट वाइल कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है. देखिए लिखा है कि कोई भी लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. सो द रूल सेज कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सप्लाइड क्या होगी, सिंगुलर. और अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सप्लाइड क्या होगी, प्लूरल. तो सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है. नाउ सी द टेररिस्ट इज सबोटाजिंग द प्लान. टेररिस्ट सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. टेररिस्ट यहां पे देखिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है विच इज सिंगुलर. सो द रूल सेज कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर. अब टेररिस्ट देखिए यहां पे किसका काम कर रहा है, सिंगुलर वर्ब का. सॉरी, टेररिस्ट आपका सब्जेक्ट हुआ. सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर. तो हमने किसका यूज किया, इसका. Now, statement number 2 says the terrorists. Is it singular or plural? This is plural. When the subject is plural, verb supplied always is plural. Terrorist plural था इसलिए क्या आया, are. तो आपने देखा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सप्लाइड सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब सप्लाइड भी प्लूरल है. सो द रूल स्टैंड्स ट्रू in 99% cases barring some exceptions. There are certain exceptions जहां पे ये रूल फॉलो नहीं करेगा. I'll discuss those exceptions. तो आपने देखा जिस प्रकार से सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल होता है, वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है. जिस प्रकार से सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल होता है, ऑन द सेम लाइन्स वी ऑल्सो हैव सिंगुलर एंड प्लूरल in verb as well. Subject singular, verb singular, subject plural, verb plural. Sabotage means होता है when you destroy something, when you destruct something. जब किसी चीज को आप destroy करते हैं, that is sabotage. Destroy करना is sabotage. Now, आपने कहा कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल होता है, वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है. राइट नाउ अब देखिए हल्का सा डिस्कस करूंगा विच विल हेल्प यू. इसे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट देखिए जिस प्रकार से सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल होता है, आपने देखा स्कूल है, स्कूल का प्लूरल क्या है, स्कूल्स. सब्जेक्ट बॉक्स है, बॉक्स आपका क्या है, सिंगुलर. बॉक्स का प्लूरल क्या हुआ, बॉक्सेस. तो सब्जेक्ट के केस में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम या तो एस ऐड करते हैं या तो ईएस. आपने देखा सब्जेक्ट में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सप्लाइड क्या होगी, सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी, प्लूरल. नाउ सब्जेक्ट के केस में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए या तो हम एस ऐड करते हैं या तो यस. लेकिन वर्ब के केस में वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन ठीक उल्टा होता है. वर्ब में भी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब होती है, लेकिन इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, ठीक उल्टा होता है. देयर इज दिस वर्ड एंटीथेसिस. एंटीथेसिस, व्हाट डज इट मीन, एंटीथेसिस. देखिए
आपने कहा कि सब्जेक्ट में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या एस ऐड करते हैं। वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, लेकिन ठीक उल्टा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, देयर इज एक वर्ड लिखा है मैंने, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है ऑपोजिट। इट मीन्स ऑपोजिट, ठीक उल्टा। दैट इज एंटीथेसिस। मेरे व्यूज कुछ और है, आपका व्यूज कुछ और है। व्हेन व्यूज डोंट मैच, तो मैं बोलूंगा माई व्यूज आर एंटीथेटिकल टू योर व्यूज। माई व्यूज आर एंटीथेसिस टू योर व्यूज। इट मीन्स ठीक उल्टा। लेकिन जब आपने कहा कि वर्ब में भी सिंगुलर होता है, वर्ब में भी प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में सिंगुलर होना या प्लूरल होना ठीक उल्टा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डू और डज में सिंगुलर वर्ब कौन सा है, जबकि आपको पता चल गया कि वर्ब में सिंगुलर होना ठीक उल्टा होता है, ठीक एंटीथेसिस होता है, तो डज देखिए आपका एक सिंगुलर वर्ब है और डू एक प्लूरल वर्ब है। मैं आपसे पूछूं कि प्ले और प्लेज में कौन सा वर्ब प्लूरल है, प्लेज देखिए आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक उल्टा हो जाता है, और प्ले आपका प्लूरल वर्ब है। सो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया कब हम डस का यूज करेंगे, कब हम डू का यूज करेंगे। जैसे पहले जो हमने सेंटेंसेस पढ़ा था उसमें लिखा था क्लर्क। क्लर्क आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने किसका यूज किया, डस का, क्योंकि रूल कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सप्लाइड क्या होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी, प्लूरल। अब जैसे एक दो स्टेटमेंट्स देख लीजिए। Or I can see Bhavani, Himanshu, many of them are answering it correctly. Renage, fine. Now, the minister is your subject. The minister, singular or plural, you can see it is a singular subject. The minister singular है, so the rule says subject singular, verb supplied singular. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी, सिंगुलर। और हमने पढ़ा कि जब वर्ब सप्लाइड वर्ब सिंगुलर होता है तो ठीक उल्टा है। तो बताइए इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है। व्हेन यू नो कि वर्ब में सिंगुलर होना इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, तो रेनेजेस आपका क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सप्लाइड सिंगुलर। नाउ look at number 2, the ministers. Is it a singular subject or a plural subject? Subject is plural, it's a plural subject. When the subject is plural, the rule says verb supplied भी क्या होनी चाहिए, plural. और verb में plural होना exactly opposite होता है. Which one is a plural verb? Renege. So the ministers renege upon their promises. What does renege mean? Renege का मतलब क्या होता है? Renege means when you go back upon a promise. कोई वादा करके आप तोड़ देते हैं, वादे से पीछे हटते हैं, that is reneging upon a promise. Renege से ही बना है, there is a word renegade. What is renegade? रेनेगेट्स कौन होते हैं, जो अपने पार्टी छोड़ देते हैं, बिलीफ सिस्टम को छोड़ देते हैं, अपने कॉज को भूल जाते हैं, उनको बोलते हैं रेनेगेट। लेट्स से समबडी इन बीजेपी, कोई बीजेपी में है, कांग्रेस में चला गया, तो ही इज अ रेनेगेट। क्यों? पार्टी सिस्टम, पार्टी बिलीव्स, पार्टी कॉजेस को उसने छोड़ दिया, तो ही इज अ रेनेगेट, वापस चला गया। यू ऑल्सो कैन से ही इज अ ट्रेटर, जो अपने कॉज को, बिलीफ को, सिस्टम को, किंग को छोड़ देता है, ही इज नोन एज अ traitor. Alright, so I can see most of them
majority are correct, many of the students. Now I'll talk about do and does, जिसको लेकर कंसर्न्स आ रहे थे कि कब do और कब does. तो ये देखिए, ये बेसिक चीजें आपको केवल टेंसेस नहीं, इनफैक्ट एक्टिव, जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ोगे, दैट इज अ वेरी बेसिक टॉपिक, जब आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ोगे वहां भी ये काम आएगा. अभी आपने कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो वर्ब सप्लाइड क्या होगी? प्लूरल. तो डू और डज वाले से क्वेश्चंस आ रहे थे. देयर वर मेनी क्वेश्चंस कमिंग अप इन रिलेशन टू there were many questions coming to. Acha, there is one more error coming up. Sir, first sentence में dear कैसे आएगा? देखिए, the minister reneges upon dear promises. यहां पे dear आना चाहिए कि it's आना चाहिए? देखिए, इनको बोलते हैं weak error. इनको बोलते हैं weak error. एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए, अगर fill in the blanks का क्वेश्चन है, बाकी सब एरर को आप इग्नोर कर दीजिएगा, उस पे कभी भी ध्यान नहीं देने का. हालांकि ये क्वेश्चन प्रोनाउन से रिलेटेड है. अगर ये एरर में होता तो यहां पे हिज प्रोमिसेस होता, लेकिन देयर प्रोमिसेस भी हम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो मिनिस्टर एक है, बंदे खूब सारे, उन्होंने भी कुछ प्रॉमिस किए, इन्होंने भी कुछ प्रॉमिस किए, इनको वीक एरर बोलते हैं. अगर ये क्वेश्चंस कभी आइडली, यहां पे बेहतर क्या रहेगा? हिज यहां पे बेहतर रहेगा. किसी ने क्वेश्चन पूछा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. हिज भी सही है, देयर भी सही है. अगर प्रोमिसेस दे आर इन रेसिप्रोसिटी, एक दूसरे के साथ किए हुए, तो दैट इज फाइन. फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, इसको हम वीक एरर मानेंगे, इसको छोड़ सकते हैं. बेहतर वहां पे हिज रहेगा. देयर वाज दिस स्टूडेंट हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहां पे बेहतर हिज है, लेकिन देयर इज फाइन, क्योंकि फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. आगे कुछ भी दिया रहे, वो सब वीक एरर्स हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे. अब से यहां पे मिनिस्टर था, उसके हिसाब से दियर आपका बिल्कुल सही है, विच इज फाइन. नाउ डू और डज को लेकर आता है, कब मैं डू का यूज करूं, कब डज. इसी पे बेस्ड एक और लिखिए स्टेटमेंट. Well, again the question coming up, लोग पूछ रहे हैं कि पहले वाले में हिज आएगा कि देयर. आई सेड दैट इज अ वेरी वीक एरर, यू कैन इग्नोर दैट. लेकिन अगर आप पूछेंगे तो वहां पे बेहतर रहेगा, द मिनिस्टर reneges upon his promises, that is much better. Otherwise that's a weak error, you can ignore that, because जो भी क्वेश्चन था वो fill in the blanks का था. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां आप पाओगे fill in the blanks में सेंटेंस गलत है, लेकिन क्वेश्चन कंसर्न है fill in the blank से, बाकी सब चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं. हाँ, अगर प्रोनाउन का क्वेश्चन आए एरर बेस्ड, तब वहां पे इसका आप ध्यान रखेंगे. नाउ बस इसको एक बार समझ लीजिए, ये केवल आपके रेफरेंस के लिए है. द ऑफिसर इवेलुएट्स द सिस्टम, कि जो ऑफिसर है सिस्टम को इवेलुएट करता है. द ऑफिसर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सप्लाइड भी क्या है, सिंगुलर. जब वर्ब सिंगुलर होता है तो उसमें एस का यूज होता है. नाउ कम टू नंबर 2, द ऑफिसर डज नॉट इवेलुएट द सिस्टम. देखिए इसी को लेकर डाउट आ रहा था. द ऑफिसर क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो बताइए डू आएगा कि डज. रूल कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब सप्लाइड भी क्या होती है, सिंगुलर, और वर्ब जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस लगता है. ये देखिए ये आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट. और मैंने कहा जैसे ही डू डज आता है मेन वर्ब में कभी भी एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं.
जब तक सेंटेंस पॉजिटिव था, सिंगुलर है, आपने एस लगाया। जैसे ही डू डज इंट्रोड्यूस हो जाता है, मेन वर्ब में हम कोई भी टेम्परिंग नहीं कर सकते। द ऑफिसर सिंगुलर था, आपने क्या सप्लाई किया? डज। नाउ लुक एट नंबर 3, दी ऑफिसर्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब सप्लाइड भी क्या होगी? प्लूरल। और हमने पढ़ा जब भी वर्ब प्लूरल होता है उसमें हम SAIS नहीं लगाते हैं।